Good morning, students. Today's class is math, and today we are ready to study exercise 3.4. In the previous video, we have finished the exercise 3.3. So let's see the first question. Find the square root of each of the following. Question number 1, 16 upon 49. Find the square root. Let's see the solution. How can we find the square root of the given numbers? We have already told you in the previous video how can we find the square root with the use of different types of methods. Here the number are given, that is rational number 16 upon 49. Then how can we identify the square root of the number? So this question I solve with the use of prime factorization method. Means in this question we have to find out the factors of the given numbers. First what we do, we should find out the factors of the given number. First number is 16. First number is 16. In the rational number 16 upon 49, 16 is numerator and 49 is denominator. So the factors of the 16 is 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8 to the 16. And factors of 49, 7 into 7, 7 7 is 49. Means 16 upon 49 can be write also this way. Okay. After that, what we have to do? We have to make the pairs. Square root, we have to make the pairs of the number. 2 into 2 say 1, 2 into 2, 2, 7 into 7, 7. Okay. Choose the number from the given pair. Choose one number from the given pair. 1 to here, 1 to here and 1 2 from 1 7 from here. 2 into 2 upon 7. Then 2 2s are 4 and 4 upon 7. Means easily we can say that the square root of 16 upon 49 is 4 upon 7. Is 16 upon 49 is 4 upon 7. 4 4 is 16 and 7 7 is 39. Okay. I think you understand it. Let's see the question number F of this part. 7 whole 19 upon 16. Sorry, 7 whole 9 upon 16. The given number are in form of mixed fraction. So first we convert into improper fraction. First we convert into improper fraction. 16 multiplied by 7 plus 9 upon 16. As we write 16 multiplied by 7 plus 9 upon 16. After that 16 7 is 112. 112 plus 9 is equal to 16. 112 plus 9 is equal to 121. 121 upon 16. After that what we have to do? In next step we have to find out the factors, the prime factors of the given rational number. इसके बाद हमें क्या करना है? जो भी रेशनल नंबर दिया है इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. देन 121 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 11. 121 और ओनली डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 11. सो 11 11 जा 121. With the use of any method you can find out it. In the previous video I have tell you so many methods, just like 4 methods. With the use of any method you can find the square root of the numbers. I have choose the prime factors of the method. So numbers क्या होंगे यहाँ पे? 11 into 11 just like 16. In the previous questions I have already told the factor of 16. 2 into 2 into 2 into 2. Just like the same 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. यहाँ पर factors हमारे क्या आ गए? 121 के factors 11 and 11 and 16 के factor कुछ इस टाइप से आ जाएंगे. 11 and 11 का 1 पेयर बनेगा. 1 पेयर से एक 11 यहाँ पर लिख देंगे. एक पेयर बन रहा है क्योंकि, और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 into 2 यहाँ पर लिख देंगे. 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से लिख देंगे. 2 2 जा 4. 2 2 जा 4 and 11 का 11. So 11 upon 4. 121 upon 16. 11 11 जा 4 4 जा 16. We should not convert it into improper fraction. Okay. 11 11 is 121 and 4 4 is 16. So what is the square root of this number? 11 upon 4. It is our answer. Clear? I think you understand the question number 1. How can you find the square root of the given number? Next we come the question number 2. Find the square root of each of the following. यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकालना था. बट देयर इज द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चंस. यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो रेशनल नंबर्स थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में थे. यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं दैट आर डेसिमल नंबर के फॉर्म में है.
सो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स सी द सॉल्यूशन. This question I have tell you with the use of two method. First, by division method. In the previous video I have tell you the long division method, finding the square root of by long division method. With the use of this method I have solved this question. First of all you draw like this 0.04. इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो भी नंबर्स दिए हैं उनको आपको पेयर्स मीन्स 2 के ग्रुप में आपको बनाना है. यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप बनेगा 0 4, एक ही ग्रुप बनेगा. अब ऐसी टेबल पढ़नी है. हमने और एक रूल बताया था लॉन्ग डिवीजन के लिए कि इसमें जो भी टेबल पढ़ी जाती है वो अपनी ही टाइम्स पढ़ी जाती है. कि अगर 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 3 3 ज़ा 9, 6 6 6 ज़ा 36, 12 12 12 ज़ा 144. जस्ट लाइक यहाँ पर 2 2 ज़ा 4. बट देयर इज वन थिंग, पॉइंट ऑल्सो गिवन. सो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट वी डू दैट आई टू प्लेस द पॉइंट बिफोर द गिवन नंबर. पहले क्या करेंगे, पहले ही पॉइंट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में और पहली प्लेस पे. तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. हाँ, आफ्टर दैट 4 से 4 कट जाएगा मीन्स 0.2 ये आपका आंसर आ जाएगा. 0.2 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. सेकेंड मेथड देखते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व इट. जैसे कि ये जो है डेसिमल नंबर, इसको हम पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 की प्लेस के बाद नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. मीन्स रेशनल नंबर क्या बन जाएगा? 4/100. अब 4/100 का हम लोग स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं. 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 × 2, 2 2 ज़ा 4. 100 को 10 × 10, 10 10 ज़ा 100. यहाँ पर 2 का पेयर था 1 निकल के आया, यहाँ पर 10 का था 10 निकल के आया 2/10. अब 2/10 जैसे हमने इसको रेशनल में कन्वर्ट किया था वैसे रेशनल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.2 इज आवर आंसर. क्लियर? दोनों मेथड से किसी भी एक मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं या डेसिमल नंबर को पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर आफ्टर दैट उसको फिर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. यू कैन चूज एनी वन मेथड ऑफ द गिवन नंबर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.0225. हाउ कैन वी सॉल्व 0.0225 द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225. So I will tell you by this by division method. By division method, first we should write 0.0225. ओके. अब सेकेंड थिंग क्या करनी है, पहले पेयर बनानी है. ये 2 का एक पेयर बनेगा और ये 2 का एक पेयर बनेगा. ये आगे 0 है, इस 0 को काउंट नहीं करना है. नेक्स्ट वी शुड रीड द टेबल. अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है 02. पॉइंट लगा इसलिए 0 काउंट करेंगे. 0 2 1 की टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे 1 टाइम. बट अगर 1 की टेबल 1 टाइम ही पढ़ते हैं तो 1 बन जा तो 1 ही आएगा. ये 0 कहाँ जाएगा? क्योंकि इसके आगे पॉइंट लगा है. इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट लगा देंगे. पॉइंट और यहाँ पर 0 आ. ठीक, 1 1 सा 1. ओके. देन 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा. यहाँ पर यही वाला 1 ऐड कर देंगे. 1 1 + 1 = 2. यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 25. आफ्टर दैट अब हमने क्या बताया कि उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है. इसी टेबल हमको उतने ही टाइम्स रीड करनी है. तो हम मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट 2 से चेक करते हैं. 2 से चेक करने पे क्या आएगा? 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 22 2 ज़ा 44, बहुत कम है. फिर इसको 4 से चेक करते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, अभी भी कम है. सॉरी 4 से चेक करते हैं. 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 96, अभी भी कम है. अब 5 चेक करते हैं. 5 चेक करने के लिए 5 दोनों साइड लिखेंगे. 25 5 × 25 125. ठीक, मीन्स ये नंबर कितने से जाएगा? 5 से जाएगा. 5 यहाँ पे लिख देंगे. 5 से पूरा नंबर डिविजिबल है. ये नंबर आपका कट गया. आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 0.15. ये हमारा
आंसर हो गया 0.15। क्लियर। सेकेंड मेथड से भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड के थ्रू कैसे करेंगे? पॉइंट कितनी प्लेस के बाद है? 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद पॉइंट है, 4 प्लेस के बाद पॉइंट है। सो नीचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचेगा? 225, 225 अपॉन 10,000। आइए आपको कैलकुलेट भी दिखा देते हैं सेकेंड मेथड के थ्रू। नंबर दिया है 0.225। यहाँ से जब पॉइंट आएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे। क्लियर। अब नंबर आपका क्या हो गया? 225 अपॉन 10,000। ठीक। अब 225 अपॉन 10,000 के आप डायरेक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है 15 जा कितना होता है? 225। या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर किसी भी जो पीछे मैंने बताया उनका यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर भी 100 × 100 ये आपके क्लियर बन गए। यहाँ से 15 और यहाँ से 100। अब इसको क्या करेंगे? फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 प्लेस के बाद 0 है मीन्स 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.15। ये भी आपका एक आंसर इसी से मैच हो जाएगा। ठीक। तो किसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फॉलो कर लीजिए या फिर कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर से कर सकते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। कुछ नंबर्स दिए हैं, देन फाइंड द वैल्यू। अंडर रूट 59.29 माइनस रूट 5.29 अपॉन अंडर रूट 59.29 प्लस 5.29 इन द रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? क्योंकि ये रूट में मीन्स स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी शुड फाइंड द रूट ऑफ द नंबर। 59.29 क्या करेंगे? रूट निकालेंगे। इस किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं और 5.29 का भी निकालेंगे। आइए देखते हैं। सिर्फ 59.29 दो पेयर बन गए हमारे। अब देखिए ऐसे नंबर लेना है जो अपनी टेबल से जाए। तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 7 जा 49 माइनस कर देंगे। 10 बचेगा। पॉइंट यहाँ पे लगा था, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 29 ले लेंगे। ये 7 यहाँ पर लिख के इसको ऐड कर देंगे, 1 हो गया। इसके बाद हमने बताया था कि अपनी ही टेबल से आना चाहिए। इस टेबल से अपनी ही टेबल से, तो जब ऐसे करेंगे तो ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। इसको आप पे ट्राई करिएगा। ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49, 9 कैरी ओवर 4, 7 4 जा 28, 4 32 का 2 कैरी ओवर 3, 7 जा 7 3 10, 1029। आपका स्क्वायर रूट कितना है? 7.7। ये 7.7 यहाँ पर लिखा है। ठीक इसी प्रकार आप 5.29 का निकाल लेंगे। 5.29 ये 23 मीन्स 529 किसका होता है? 23 का होता है। तो ये 2.3 का रूट मानेंगे। ठीक इसी प्रकार आप इसका भी निकाल लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद दोनों की ये रूट आ गया। तो रूट निकालने के बाद ये जो साइन लगा ये आपका हट जाएगा। सीरियल नंबर आपका यही लिखिएगा 7.7 माइनस 2.3 अपॉन 7.7 प्लस 2.3। ऊपर माइनस कर देंगे 5.4, नीचे प्लस कर देंगे 10। 5.4 अपॉन 10, 10 में 1 0 है, 1 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.54। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है? दोनों के रूट निकाल के माइनस और प्लस कर देंगे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर करेक्ट अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं और डेसिमल की 2 प्लेसेस तक निकालने हैं, एटलीस्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नंबर 3 दिया है। अब क्योंकि हमको आगे के डेसिमल प्लेसेस पे निकालने, इसलिए क्या करेंगे हम इसकी, क्योंकि ये होल पार्ट है, इसमें डेसिमल कहाँ लगा होता है? इसमें डेसिमल यहाँ लगा होता है। तो ये होल पार्ट है, इसके आगे डेसिमल पार्ट स्टार्ट होगा, तो इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। जितनी हमको जरूरत होगी उतने 0 हम बढ़ा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने 4 0 बढ़ाए हैं, 2 पेयर्स बनेंगे। ठीक। सबसे पहले 1 की टेबल पड़ी गई, 1 1 जा 1। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल अगर लेंगे 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगी। 1 1 जा 1, 3 - 1 = 2। नेक्स्ट पेयर का रह गया 200।
ओके, इधर 1 और 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 2 है, 2 में ऐसी टेबल पढ़नी थी जो इसके आसपास जाए, एग्जैक्ट तो नहीं जाएगी, इसके आसपास जाए। ठीक, तो यहाँ पर 7 की टेबल ली गई, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 189 माइनस किया गया, 11 बचा, नेक्स्ट पेयर 100, 27 और 7 ऐड करके 34, यहाँ 1100, 1100। उसके बाद 3 टाइम ले गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 1 10। अभी भी 71 रिमेनिंग है, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा करते हैं, क्वेश्चन कहा था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नियरेस्ट 2 डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस तक ही फाइंड आउट करने के। डेसिमल नंबर के 2 प्लेसेस हमको मिल गए, हमने ले लिया। अगर मान लीजिए इसके आगे सॉल्व करना तो क्या करते, फिर 2 0 के पेयर बनते, फिर वो 0 यहाँ पे ऐड करते, फिर 343 लिख के आगे की टेबल पढ़ते, तब आगे फाइंड आउट करते। लेकिन क्योंकि हमको केवल डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ही चाहिए, इसलिए हम केवल यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो √3 स्क्वायर 3 √3 द वैल्यू इज 1.73। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर F 9.61, सेम इसी प्रकार 9.61, इसका भी आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 9.61 जीरो कम पड़ेंगे, जीरो उतने ही हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 में 3 की टेबल इजीली आ रहा है, 3 3 जा 9 कट गया। नेक्स्ट पेयर क्या होता है, 61, इधर 3 और 3 ऐड हो जाएगा, 3 3 जा 6। अब 61 है और यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 1, क्लियरली पता चल रहा है 161 बन जाए, इसके पूरा पूरा कट गया। ये 2 पेयर का जीरो था, 2 पेयर थे तो सीधा ये जीरो बार पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9.61 इज इक्वल टू 3.10। तो बाय द यूज ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड इजीली द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ड प्रॉब्लम। The area of square field is given. Find the length of each side. एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया दिया हुआ है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 150 होल 158 होल 19/25 मीटर। फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 158 मल्टीप्लाइड बाय 25 देन ऐड टू 19। 158 मल्टीप्लाइड 25 इज इक्वल टू 3950 प्लस 19। 3950 plus 19 is equal to 3969/25 meter. It is the area of square field. After that we should know, we know that area of square is equal to side into side. What we have area in the given, area is given 3969/25 side square. Then side is equal to, side into side means क्या, side square. Side is equal to area. ये जब यहाँ से 2 हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक, 2 साइड्स थे तो यहाँ पे क्या होगा, साइड स्क्वायर। जब यहाँ से केवल एक साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो एक साइड का ये जो बचेगा इसको अंडर द रूट शो करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3969। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे देन इट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 63 मीन्स स्क्वायर ऑफ 63। ये 63 का स्क्वायर है। यू शुड ट्राई एनी मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर। इट इज 63 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। देन यू मेक द पेयर 63 into 63 163, 5 into 5 1563/5, then convert it to mixed fraction 12 whole 3/5 meter. So length of each side of the square field is 12 whole 3/5 meter. It is our answer. एरिया गिवन था और साइड फाइंड आउट करनी थी, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रखी गई और साइड की जगह साइड, क्योंकि साइड फाइंड आउट करनी है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये आपके होमवर्क है। 6, 7, 8 आपके होमवर्क है। 6 में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर। स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट लेंथ मीन्स जो लेंथ होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है विद द यूज ऑफ रूल। एंड 8 नंबर द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया से बराबर है, इनकी साइड 7.26 मीटर और 6 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी, इसकी लेंथ 7.26 मीटर है और ब्रेथ 6 मीटर है। इसका जो भी एरिया होगा वो स्क्वायर फील्ड के एरिया के बराबर होगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड।
तो जो स्क्वायर फील्ड है उसकी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, उस साइड की जो भी लेंथ होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, विद द यूज ऑफ रूल यू कैन फाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट करना है, स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। लेट्स चेक द नंबर 21। सो द स्क्वायर्स अराउंड 21 आर। अब 21 जो नंबर है ये किन दो स्क्वायर रूट्स के आसपास पड़ेगा ये देखते हैं। ये नंबर हमारा 16 और 25 के बीच में पड़ता है। 16 और 25 ही क्यों लिए गए नंबर, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। ऐसे नंबर हमको लेना है जिनके बीच में ये नंबर है, ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिनके बीच में नंबर है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे हैं, सीरियल नंबर में है इसलिए। Then the square root of 21 lies between under root 16 and under root 25। अब जो ये 21 है इसका स्क्वायर रूट या तो रूट 16 या रूट 25 मीन्स या तो 4 स्क्वायर या तो 5 स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 21 से 16 के बीच की गैपिंग कितनी है, 21 माइनस 16 5 गैप है। कितने की गैपिंग है, 5 की। और यहाँ पर 25 और 21 के बीच में कितने की गैपिंग है, 4 की गैपिंग। गैपिंग किस में कम है, गैपिंग इस वाले में कम है, मीन्स 25 में गैपिंग कम है। सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ 21 विल बी क्लोजर टू 5 देन 4। जो स्क्वायर रूट 21 का है वो 5 के क्लोजर है 4 की अपेक्षा। किसके क्लोजर है, 5 के क्लोजर है। सो द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 21 इज 5। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 21 इज 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप क्या था, 4 था। यहाँ पर केवल 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, गैप यहाँ पर कम है, मतलब ये नंबर इसके पास में है। तो यहाँ पर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, जिसमें गैपिंग कम होगी, बीच की जिनके नंबर डिफरेंट में कम होंगे वो नंबर आपका आंसर होगा। क्या करना है आपको, जो नंबर दिया होगा पहले चेक करना है कि वो किन दो स्क्वायर रूट्स के नंबर में आता है। देन आप उसका स्क्वायर लिखेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे कि किसके बीच की गैपिंग कम और किसके बीच की गैपिंग ज़्यादा है। इनके बीच की गैपिंग कम होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक, सो लेट्स सी द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ए और एफ हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर बी सी डी एंड ई, ये आपके होमवर्क है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड एफ हमने बताया, बी सी डी एंड E is your homework. Question number 3 A I have told you. Question number B is your homework. Question number 4 A and F I tell you. Question number B C D E is your homework. Then question number 5 I tell you. Question number 6 homework. Question number 7 homework and question number 8 homework. Here the question number B C and D homework. So in today's video we have finished the chapter exercise 3.4. In next video we have started to the next chapter and new chapter. So we will meet you in next video. Thank you.